फ्लाइट नंबर 101 में आपका स्वागत है। वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी, निरमा से आई रंगीन कपड़ा भी, खेले खेले जाए सबकी पसंद निरमा। निरमा। सो हाय देयर भाई और बहनों, मेरा नाम है पवन गांधी और मेरे साथ मेरा प्रिय मित्र है, उसका नाम है जैद कुरैशी। सो हाय देयर जैद, हाउ आर यू डूइंग? I am Zaid Qureshi, your friendly neighborhood strength coach. Doing good. अच्छा, बट मैंने तो तुझसे नहीं पूछा ना कि तू क्या करता है। तो स्ट्रेंथ कोच बोलना जरूरी था। जरूरी है बोलना, अब क्या करेंगे भाई, सबके अपने अपने हैं, मतलब बोलेंगे ना, जरूरी है। पॉइंट है। सो या, दिस इज जस्ट अ थिंग which we were planning since a long fucking time, and finally we are gonna record it on We're the same doing it. day and also fucking upload it on the same day. So yeah, that's a challenge for us. so yeah, it's pretty excited for that. So yeah, I mean, my name is Pawan Gandhi. दूसरी बार बोल रहा है तू? हाँ, दूसरी बार बोल रहा है तू? अच्छा, मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ। ओके। यार मतलब मैं तो बोलूँगा यार, ऐसे कैसे ऐसे कैसे नहीं अब बोलूँगा। तेरा ही चैनल है ना भाई, लोग एग्जैक्टली, जानते हैं। इसलिए तो चलो ठीक है, चलो अच्छा ठीक है। आई मीन you've got a point though, सही but है। then anyways मैं अभी तीसरे बार भी बोलूँगा। चलो ठीक है भाई। So hi there, my name is Pavan Gandhi. I'm 22 years old, and let's just say currently I'm just in the zone to explore myself for the time being. So yeah, and there you go, bro. कहाँ से स्टार्ट किया जाए फिर? Introduction. Okay, this is Zaid Qureshi, and I am a fitness coach basically. That's what I do for a living as of now, and I've just started a year ago. बस ज़िंदगी में यही खास है, और क्या सुनोगे मेरे बारे में? और मेरी लाइफ में कुछ बढ़िया तो है नहीं। And yeah, आज what are we talking about? So What are we covering? I mean, you already know it, right? What Yeah, are we but then covering? let's fake it a bit. No, let's make it look a bit crisp. Yeah, I mean, so we are gonna talk about your favorite YouTuber, Bia Biceps. No, I don't love him at all. Nobody loves him, and if you love him, अगर आप बंदे हो तो आप गे हो, सीधी बात For है। no dude, there are still like a hell lot of people who do actually follow him. हाँ, मेरा भी कज़न है, मतलब वो भी उसको काफ़ी पसंद करता है, मतलब पता नहीं क्यों, क्या बात है, लेकिन देखो आप लोग सब जानते हो कि बाहर क्या चल रहा है। एंड कमिंग बैक टू द टॉपिक कि आज बात करेंगे आपके प्यारे इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, जो आपको काफ़ी चीज़ें बोलते हैं, जो आपको अपील करती है, उनको अपील करती है, एंड दे मेक मनी ओवर योर, Exactly. तुम्हें चूतिया बनाते हैं, सीधी सीधी बात है। So like, to cut it short, we are gonna talk about how you can actually spot a fake influencer. Yeah. I mean, Yeah. so at times like these, there are a hell lot of people who are sharing stuff online, and especially in the self-help zone, and it's really hard to distinguish कि कौन सा बंदा genuine and कौन actually such information दे रहा है, वैसा कोई information दे रहा है कि जो practically applicable भी हो, right? So yeah, I mean so this is why I thought that I should like make a video upon it. So yeah, I mean, I'll hit you up with a question, Zaid. Like, according to you, what are the 5 things, ठीक है, which make you spot a fake influencer? So first off, I'll say, see, they aren't just there in the self-help zone. They're like everywhere. Of course. Especially fitness, जो मेरा मतलब like, which is my own area of like where I'm at right now. So 5 things would be, look, the number one thing, if you really know what evidence means, ठीक है, if you really have some sense and like if you can recognize what things are right and wrong, तो पहली बात तो वो basis of evidence से ही खेल जाते हैं। Like, अच्छा, also I mean, just to tell you, kind of layman terms में बोलना, तू तेरे वो fitness के उसमें मत घुस जा, ठीक है? फिटनेस नहीं है, बहुत सीधी बात है, चलो हिंदी में बात करते हैं। मतलब तू किससे बात कर, बदन ऐसा परिवर्तन ऐसे हिंदी में हो, simplify रख। ठीक है, हाँ। अनुवाद होगा इस चीज का। हाँ। तो अगर कोई, तो ये आता है सबसे पहले तो, चलो वो अपनी बॉडी को बेच रहे होते हैं इन एवरी फील्ड, फिटनेस में नहीं, सेल्फ हेल्प में भी। द वे दे लुक, जिस तरह वो लोग दिखेंगे, जिस तरह उनकी भाषा होती है, और भैंचो ये लोग ना बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होते हैं दिखने में, ठीक है। तो अपनी
तो अपने चेहरे को, अपने रंग को, खूबसूरत होते नहीं, फोटोशॉप करते हैं। नहीं कुछ होते भी है, फोटोशॉप भी करते हैं बहन के लोग बहन के लोग साले करते हैं ट्रुथ बॉम्ब्स। या बट सीधी बात है ना, अगर कोई लौंडी आपके सामने आ रही है, मतलब शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड शी सेज कि नो नो दिस फ्लैट, मतलब आपको पता है और फ्लैट नहीं है, बट देन द वे शी वुड से इट, द वे शी लुक्स अपीलिंग लगता है यार। सीधी बात है, इंसान है हम लोग, लगेगा ही। तो पहली बात तो ये होता है कि वो लोग अपने जो सो कॉल्ड उन लोगों का जो इमेज होता है ना, उससे चीज़ें बेचते हैं, ठीक है। दैट वुड बी नंबर वन थिंग। इसको ख़त्म करते हैं, साइड में करते हैं। और सेकंड होगा मेरे हिसाब से, सेकंड क्या होगा, तू इसको अपन चल विल कीप इट शॉर्ट, लाइक एग्जैक्टली 5 पॉइंट मिलके बोलते हैं, तू बता सेकंड क्या हो सकता है। that makes sense. So yeah, I mean again, second चीज ये रहेगा यार, वो you know again real talk और right talk की बात आ गई. So I mean again, just to give you guys an example, there are a lot of influencers जो actually pretend करे कि वो real talk कर रहे हैं, ठीक है, but then how you can actually distinguish between a real talk and a right talk is basically, अगर you know, I mean, so there's this YouTuber, ठीक है, I do follow him a lot. His name is I mean his channel's name is प्रखर के प्रवचन. So वो बंदा real talk देता है, and what I mean by that is कि उसके हर बात में ना कुछ सच दबा रहता है, जो अपने को kind of you know reality check देगा, in the sense कि I would at least feel pain, guilty. I would be like, यो भैंचोद मैं ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ, right? But then जो beer biceps जैसे YouTubers, again I don't give a fuck about him. I'm just gonna call out the name. Yeah, for sure. Ranveer what? रणवीर अलाहाबादी. Yeah. So yeah, I mean ऐसे लोग हैं ना, yeah, I mean so again, I mean there's this short story which I'll add, ठीक है. So yesterday I met a friend, ठीक है, who wanted to know few things which I learned in the pro league, ठीक है. Right. And then you know वो बंदा काफ़ी टाइम से रणवीर को फॉलो कर रहा था, ठीक है. एंड देन आई मीन मुझसे मुझे, मैं एक्चुअली उससे बात कर रहा था, सो मुझे एक चीज़ समझा, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग है ना, इनका पर्सनालिटी ऐसे वे में पोर्ट्रे करते हैं कि यू नो दे आर लाइक द स्वीट गाय, ठीक है, दे आर लाइक रियली पॉजिटिव, एंड उस पर लोग एक्चुअली बिलीव कर देते कि हाँ ये बंदा यू नो एक्चुअल में ये है. सो द थिंग इज़ कि दे आर जस्ट you know, I mean, few things like being positive, ठीक है, being sweet, being kind, ये चीज़ को इतना कैपिटलाइज कर रहे हैं कि इस पे वो लोग पूरा उनका पर्सनालिटी बेच रहे हैं बाहर. I mean, this is what I think, you know. Yeah, I mean, sorry to cut off, like Pawan, sorry to cut you off. तो ये तो पहले पॉइंट में ही आ गया, building up their personalities in such a way that it becomes very appealing, and the point that they portray gets like very easy to like basically apply or implement, ठीक है. तो I would say second point आता है individuality का, if that's right. Whatever they say, whatever they so like जो as in जो मैंने एग्जांपल दिया अभी, राइट, I mean it's not like कि you know वो first point में ही cover up हो गया. I was just giving an example to the context. Okay. See, I mean like basically again getting back to the point, right talk and real talk, ठीक है. So I mean if there is someone who is claiming कि तुम you know I mean इतने दिन में, I mean जैसे फिटनेस के कॉन्टेक्स्ट में probably तुम 7 हफ्तों में फैट लूज कर लोगे. अगेन ही इज अ फेक इन्फ्लुएंसर. So the thing is कि वीडियो के टाइटल से, ठीक है, you can spot or you can you know just guess कि ये कैसा रहेगा. That's what I think. Yeah, I mean that's a step, but then again आगे बढ़ने से समझ में आएगा क्या वो चीज़ दे रहा है. Of course, but like so I mean to sum it up, we can say कि वो first step है, right? Yeah, and the second step I'll just go with that. I'll go there. Yeah. So it could be individuality, like the lack Third. of third basically, yeah. So they don't really take individuality into consideration. I'll tell you how, ठीक है. अभी फिटनेस के सेंस से जाते हैं एंड देन इसके वाले पॉइंट पे भी आएंगे. सो इफ आई एम टेलिंग यू, मतलब एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, वो अपनी बॉडी दिखा के ही इज लाइक सेमी न्यूड टी शर्ट निकाल के ही इज डूइंग बैक एंड एवरीथिंग, एंड होता है ना कि डू दिस ऑन योर नेक्स्ट बैक वर्कआउट, ओके, एंड सेव इट एंड टैग योर फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग. सो ही मस्ट बी डूइंग थिंग्स दैट वर्क वेल फॉर हिज बैक डेवलपमेंट. pull-ups, heavy deadlifts. Deadlifts basically don't build your back that much. Heavy rowing, okay. Some sort of influencer finisher देखा होगा जिम में कुछ creepy way में उल्टा लटक के कुछ कर रहा है. It's right there, right? तो must be working great for him, but then again not works for everybody else, okay. तो ये एग्जाम्पल दिया मैं आपको इंडिविजुअलिटी का, बट देन वो करे तो इतना अपीलिंग लग रहा है कि लोगों को ट्राई करना ही करना है, एंड पीपल क्लेम कि एक काम भी कर रहा है, ठीक है. और सेल्फ हेल्प वाले सेक्टर में कैसे तू उसको करेगा? Do you have any idea? Yeah, of course. So again, I mean, if so,
how to be confident, right? So again, Oh shit. hi guys, my name is Ranveer Allabadia and अगर आपको एक हफ्ते में कॉन्फिडेंट होना है कम्प्लीटली तो मैं 5 चीज़ें बोल रहा हूँ वो करना है. सुबह उठना है, कच्छा नहीं पहनना है, पहला चीज़ है. टट्टो खुला छोड़ने से हवा चलेगी अंदर, टट्टे खुले रहेंगे तो हवा जाएगी अंदर, हवा दिमाग ठंडा रहेगा, ठंडे रहोगे, समझ रहे हो? और सेकंड चीज़ है ये पर्टिकुलर फेस. उप्स. That's final. Yeah. तू बोलता रहे मैं So कुछ yeah, कर देता हूँ. सेकंड चीज़ ये है कि देयर इज दिस पर्टिकुलर फेस वॉश, आई मीन. सो क्या ये मुझे बोलना ओके, चाहिए? ये हमें करना, हमने पहले की दिमाग लगाया ये Okay, चीज. so, क्या सही लग रहा है? इनोवेशन गाइस, इनोवेशन. अच्छा, स्टूडियो बन गया हमारा ये. ये विराज, अरे वो मतलब बियर बाइसेप्स का ये है, पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर. ओके. सो आई मीन लाइक मैं ये कॉन्टेक्स्ट में रणवीर और तू विराज है. हाँ, मैं विराज हूँ. ब्रो यार वो एक ब्रांड ही लाई है अभी, ठीक है, ओके. एंड फेस वॉश है तो चिपका दूँ कॉन्फिडेंस की वीडियो में. अरे इनके सामने मत बोलो, चिपकाते हैं तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या? चिपकाते भाई, चिपका दूँ? पैसे कैसे कमाएगा? यही तो पैसा माल. चिपका देता हूँ. यस. So, guys, again, Ranveer is back. So yeah, the second point is there's this particular face wash which you guys should apply. You would just feel so damn positive about your skin, and once you feel positive about your skin, you guys will have an exuberant confidence, which the world would really appreciate. So yeah, this is what I mean by fucking Yeah, and right talk. you'll ask me कि इससे अल्फा मेल कैसे बनोगे? इसमें बुल का सीमन भी होता है. तो लगाओगे तो Nice point. एग्जैक्टली भाई, हाई टेस्ट लेवल्स, समझ रहे हो? सीमन लगेगा चेहरे के ऊपर, चेहरे में रौनक चमकेगी और अल्फा मेल बनोगे. समझ रहे हो? सो मच एविडेंस, फक यू ऑल, साइंस है यार, समझ रहे हो? अरे विराज, वो एक और चीज़ है, प्रोटीन का ब्रांड भी है, बोल दो क्या, उससे भी कॉन्फिडेंस. अरे बोलना तू यार भाई. अरे भाई तुझसे पूछना पड़ता है, तू मतलब तेरे थ्रू तो मेरे को सब डील जा रही है. सही बात. ठीक है, बोलो. बोल दे. कोई देख रहा तो नहीं ना? नहीं, कौन है? अच्छा, बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट वगैरह, कौन देखने वाला? बोल दे तू अपना ही. Sure. Guys, so there is this protein brand which has just launched, and bro, what's like the name of that brand? Oh fuck, I forgot. What's the name of the brand? मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो है सो है, डब्बे लगा देंगे यहीं पे, आप लोग देख लेना यार. वो लगा दें, थंबनेल में लगा दें. ठीक है. तो बेचने से मतलब, पैसे कमाने से मतलब, तो अपनी गान बनाओ. So yeah, I mean guys, you should definitely use this protein. It just helps you for your digestion. It's just so super good, Oh, yeah. I mean, it's also going to increase your testosterone level, which is going to again make you feel confident. ककड़ी बड़ी. सलाद. फिर आप लोग रूम में लूडो भी खेल सकते हो, मतलब समझ रहे हो मेरी बात? Again, I mean, anyways, like getting back to the real talk. Shit, yeah. Yeah. So I mean these are, I mean, obviously we were like joking in between, but then yeah, I mean, these are a few of the ways which we think कि ये influencers हमें पागल बनाते हैं. And I mean, there's this another example I would like to give. So I mean, there are again a lot of YouTubers, ठीक है, who claim that they are spiritual, right? And वो वो सेंस में वो लोगों को कुछ भी बोले and they'll be like कि this is the thing which you wanna do. I mean, as Ranveer claims कि see again, मेरे को बंदे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को उसका आइडिया से प्रॉब्लम है, ठीक है. So वो बंदा क्लेम करता है कि I mean, if you actually meditate, ठीक है, I mean, if there is this one thing which you'll do, it will change your life, ठीक है. But then the thing is कि he has a point, right? कि I mean, meditation करोगे तो I mean, you'd be more peaceful, right? But then the thing is कि वो उसको ऐसे वे में प्रोवाइड कर रहा है कि मतलब ये ऐसा कुछ फ्लैशी चीज़ है जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर दूँ और मेरा लाइफ बदल जाएगा. So this is the damn thing I have a problem with. Yeah, the point is ना, again, जैसे पवन ने कहा कि हमें उनके इंसान होने पे, जीने पे, जगने से, फेमस होने से प्रॉब्लम नहीं है, उनकी बातों से प्रॉब्लम है. I'll tell you how. अब these are the people who have the biggest followings, if not the most biggest following in India. ठीक है? Dude, I mean, उसका जो पॉडकास्ट है वो कितना फेमस है. Exactly. I mean, कितने लोग देखते हैं. The amount of cinematography that goes into his podcast and everything, वो जो एडमायरल वाली होती है मूवीज वगैरह में, यार that's so catchy. मतलब मन करता है कि भाई मतलब मान जाऊँ बातें, लेकिन हमें पता है गलत बात कर रहा है. और होता क्या है ना, इनकी फॉलोइंग इतनी बड़ी है ना, स्पेशली फ्रॉम द यूथ साइड, तो
जो ये बोलेंगे काफ़ी लोग सुनेंगे, ठीक है, और इनको मना कर इनकी बात के खिलाफ जाने वाले मानने वालों का नंबर भी बहुत बड़ा होगा, ठीक है। अगर हम दोनों कोई गलती से फेमस हो जाए और हमको 10 लोग जानते हो और उनके पास पहले से 100 लोग हैं, तो नंबर किसका जोड़ा हुआ, उन्हीं के पास ना। तो होता क्या है ना, लोग मिसलीड होते हैं, और फिर होता क्या है ना कि मिसलीड तो हो ही रहे हैं, लेकिन इन्होंने इनको इतनी बुरी तरह से इन लोगों को रिवर्ट कर लिया ना अपने पास, ये भगवान बन चुके हैं उन लोगों के लिए। उन्होंने कह दिया कि अपना मुंह पी लो, पी लेंगे। खाली चाय बना लो, अपने मुंह में जलजीरा डाल लो, कम चाय पर डाल के बना लो, उसको ब्रू कर लो, उसको जो भी करना है कर लो, पी लो, सेहत बनी रहेगी। ये कर लेंगे यार, मतलब होते हैं यार, लाइक यू गेट माय पॉइंट। again you're I mean like you know getting back to the real talk again. So yeah, I mean like so I mean there's this thing, okay, इतने टाइम से तो अपन ने यू नो प्रॉब्लम को एड्रेस किया है, राइट, ठीक है, बट देन देयर इज दिस अनदर थिंग आई वुड लाइक टू टेक आई वुड लाइक टू शेयर एज वेल. सो देखा जाए ना, स्पेशली इंडिया में गलती सिर्फ यूट्यूबर्स की नहीं है, ठीक है, गलती एक्चुअली लोगों की. जैसे बॉलीवुड के कॉन्टेक्स्ट में, बॉलीवुड को किसने फेमस बना, हम लोग ने बना, और अभी सब लोग बॉयकॉट कर रहे हैं. एग्जैक्टली. सो गलती ऑडियंस की भी है, क्योंकि सो आई मीन अगेन आई वुड वांट टू कनेक्ट दिस पॉइंट विद समथिंग आई वाज वाचिंग यस्टरडे. तो कल रात को मैं यू नो वरुण सिड और प्रखर का एक लाइव सेशन देख रहा था, ठीक है. वो बीएसएनएल वाला, पापा बीएसएनएल में काम करते हैं. मतलब वो नहीं, वो वेदांत के साथ रहता है यूजुअली, बट हाँ वो जो क्रैक किया था कल भी. सो अगेन आई मीन there's this point, ठीक है, they were just talking about Joe Rogan, ठीक है. Okay. फिर वरुण एक चीज बोलता है, you know, प्रखर, you really have the capability to be the next Joe Rogan, ठीक है, but then some of them, I mean प्रखर या फिर सिड, उन दोनों में से कोई तो एक बात बोलता है which just hit me, ठीक है. सो आई मीन they are like कि नहीं, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में प्रखर के लिए जो रोगन बनना बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि द थिंग इज कि यहाँ पे ऑडियंस डम है, राइट. डम तो है ही, आई टोल्ड यू, मतलब एग्जैक्टली. सो मैं बोलता हूँ फिर अगेन आई मीन द रीजन व्हाई इट वर्क्स इन यूएस इज यूएस में इंडिया मतलब वो फील सो गुड. एग्जैक्टली. यूएस में पहली बात तो वैसे क्रिएटर्स नहीं है जो वैसा बनाते हैं, दूसरी बात कि वहाँ पे ऑडियंस भी स्मार्ट है, वो लोग वैसे क्रिएटर को सस्टेन करने नहीं देंगे. सो आई मीन आई जस्ट थिंक कि वो यू नो पॉइंट में कुछ सेंस. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द होल ऑडियंस एस्पेक्ट? आई डोंट थिंक कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं, बाहर नहीं है, बाहर भी बहुत ज़्यादा लोग हैं और उनकी गांड मारता है फिल्म नाम का बंदा. अगर तुम यूट्यूब देखते हो, तुम जिंदा हो दुनिया में, तो इवन कमिंग बैक टू द जो रोगन पॉइंट, आई डोंट थिंक प्रखर को जो रोगन बनने की जरूरत है. प्रखर खुद ही अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, ऑफ कोर्स, ठीक है. फकेट यार, मच्छरों को आने थे, अपनी गांड मारने थे भाई, बहुत सच्चाई तो निकल के रहेगी बाहर. मतलब गेट भी खोल रहा हूँ भाई, मर जाऊंगा वरना. तो बेसिकली या कम बैक टू द पॉइंट, प्रखर को जो रोगन बनने की जरूरत है नहीं. प्रखर खुद अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है और ब्रांड ऑफ रियलिटी है, लाइक लेजेंड रियलिटी. और जो रोगन भी काफ़ी डिल्यूशनल आदमी है मेरे हिसाब में, ठीक है. वो स्मार्ट नहीं है, मैंने ऑब्जर्व किया बीच में फिल्म की वीडियो देखने के बाद में. इज नॉट स्मार्ट. वो चीज़ें जानता है एक बेसिक लेवल के ऊपर, और अपनी आइडियोलॉजी और जो उसके ऊपर जो जानता चीज़ों को पोर्ट्रे कर रहा है इन अ वेरी स्मार्ट वे. तो लगता है कि बहुत स्मार्ट इंसान है बन. तो ही इज अ गुड ऑब्जर्वर, दैट्स फॉर श्योर, बट इट डजंट नो मतलब लाइक द कंप्लीट शिट. ठीक है. तो ये दो मैंने पॉइंट निकाल दिया. एंड ऑडियंस की बात करें तो यार ऑडियंस हमें चूतिया ही है, ठीक है. मतलब इन लोगों को ना, मतलब ये चटोरे हैं, समझ रहे हो, मतलब इन लोगों को वही, मतलब बीच में वीडियो वायरल था ना कि बंदा मूत दिया है पानी में पानी पूरी के, लड़कियाँ फिर भी दीवानी है पानी पूरी की. मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि मत खाओ, लेकिन दिमाग में आता नहीं है क्या? अच्छा you know but then there's this like point I would like to take a stand on. So basically as you said कि it's not like कि इंडिया में डम ऑडियंस है, बाहर भी, बट आई थिंक कि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है ना, वो डम ऑडियंस है, इन लोग को इतना ज़्यादा व्यूज़ दे देता है. आई थिंक ये मेन चीज़ था जो मुझे एड्रेस करनी थी. ओके. कि आई मीन सो अगेन मैन, व्हाई इज द रीज़न व्हाई like TikTok was so huge in India? It's just because of two reasons. The number one is population and number two is fucking Jio. ओह यार, ने मोटा भाई ने जब से इंटरनेट दिया ने, तो उसके बाद में दुनिया बूम हो गई ने. इंडिया लोग, मोटा भाई ओपी इन द चैट करो सब. यस एक्चुअली करो. भाई कहाँ पहुँच गया हमारी. सही में. तो बात तो सही है. ऑडियंस की बात करोगे तो अपने यहाँ पे ऐसे लोग भी है ना जो मतलब ऐसे बस वीडियो खोल के बस देख के लाइक ठोक के प्लीज़ बॉब्स बजाना सब करने वाले बंदे भी हैं. तो भीड़ तो बहुत अपने ज़्यादा है, भीड़ बहुत है. एग्जैक्टली. और लोग, मतलब मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, लिटरेसी पे जा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग भी वो तो मतलब पढ़े लिखे लोग ही अनपढ़े मेरे हिसाब में, तो समझ रहे हैं. मतलब
बीच में 2018 में, इफ यू रिमेंबर द प्रिया वरियर सीन, हाँ और वो आईपीएल में जो किसी बंदी को वो कैमरामैन दिखा देगा, वो खूबसूरत लड़की, कल सुबह तक उसके 100K के ऊपर फॉलोअर्स हो जाएंगे। तो अपने यहाँ पे लोगों को अकल ही नहीं है क्या देखना है, कैसे देखना है, कि चीज़ कोई फेमस करे जा रहे हैं, वो इतनी सुंदर है मैं क्या करूँ भाई, इतनी गांड मरा मैं क्या करना है, समझ रहे हो? तो पीपल गेट ऑल दिस, लाइक दे क्रिएट द हाइप, पीपल आर द वंस, लोग ही, ऑडियंस ही है जो उसको हाइप को इतना बढ़ा रहे हैं, एंड देन इट्स लाइक ओ ये सही नहीं कह रहा, गलत कह रहा है। आपको समझना चाहिए ना, यू शुड हैव लाइक, यू हैव टू आईज, लाइक मतलब समझो, देखो, परखो चीज़ों को। Right, right. I mean, of course. I mean, this point obviously makes sense. So yeah, I mean, but again, you know, coming back to the whole right and real thing, I would just like to share my experience. Okay, where you know, I used to watch you know, few influencers again, you know, but then Okay. I got wrongly influenced by them. Okay, and probably for a year I was practicing meditation in a wrong way because of these influencers, right? So अगेन मैं बियर बाइसेप्स को फॉलो करने का, ठीक है, एंड बहुत टाइम से यू नो, आई मीन, आई यूज्ड टू वॉच हिज मेडिटेशन के वीडियोस, ठीक है, एंड आई सॉर्ट ऑफ रियलाइज रिसेंटली, ठीक है, जब मैंने कुछ प्रखर की वीडियोस देखी कि मैं इतने टाइम से हाफ नॉलेज, एज इन वो बंदा जो भी चीज़ इंटरनेट पे डाल रहा है वो हाफ नॉलेज दे रहा था, एंड मेरा प्रैक्टिस का वो जो experience and it wasn't that fulfilling which it is now. So again, I've also been a victim of you know, these fake influences. So yeah guys, I mean, I wouldn't want any one of you all to, you know, get into that zone and, you know, just end up believing whatever the shit they're trying to sell, because again, that can impact your life in a, you know, in a very harsh way. Again, to add one more example, right? सो बहुत लोग ओवर थिंकिंग की बात कर रहे थे, ठीक है, सो आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दिस इन्फ्लुएंसर, बट देन एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर था, ठीक है, सो दे वर एक्चुअली सेइंग दिस, ठीक है, जो जिसने कॉमन सेंस की पूरी गांड मार दी, ठीक है, so they were like कि, I mean, we can actually control our thoughts, ठीक है, we could actually control you know, how we I mean we can actually control overthinking. उसके बाद भाई मैं इंडियन यूट्यूब में सेल्फ हेल्प फॉलो करना ही बंद कर दिया बिल्कुल. सो अगेन गाइज, आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ इट, एंड ज़ेड आई वुड लाइक यू टू आस्क, और प्रॉब्ली यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, या तेरे साथ कुछ हुआ या फिर कोई तेरे पहचान वालों के साथ कुछ हुआ ऐसा फेक इन्फ्लुएंसर्स के बातों में आ गए. बहुत लोग हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, जैसे कि आप लोगों को, अगर अगेन मैं तो फिटनेस की बातें करूंगा बिकॉज लोनली लाइफ बस ज़िंदगी में वही है, बात करने के लिए मैं इधर से को, सो विल कम, मतलब ये इसलिए बिकॉज अपने यहाँ पे भी लोग बुरे नहीं है मेरे हिसाब से, है हर जगह पे, बट अपने यहाँ पे ज़्यादा नंबर हो सकता है, दैट वुड बी अ थिंग. सो मेरा फ्रेंड विराज, ठीक है, अगर वो देख ले गलती से तो नहीं, मेरे दोस्त का नाम सच में विराज है, तभी मैं लाइक कन्फ्यूज लाइक ये विराज को कह रहा है. तो ही यूज्ड टू फॉलो एथलीन एक्स, आप लोगों को अगर मालूम है तो कौन है वो, जेफ कैवलियर. गाय क्लेम्स टू बी, मतलब ही इज़ अ PhD, कुड बी अ PhD, आई डोंट हैव एनी आइडिया, फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह भी है कहते हैं. उसके ज़्यादा वीडियोस बाइसेप कर्ल्स वगैरह के ऊपर ही है, और मेरी फ्रेंड का जेनेटिक स्टैंड पॉइंट, ही इज गॉट गुड बाइसेप इंसर्शंस, तो ही वुड शो मी हिज वीडियोस, बोल के पहन तो चुतिया बना रहा है कि मैं उसको पागल बना रहा हूँ, आई एम नॉट एविडेंस बेस्ड, जेफ इज एविडेंस बेस्ड, और वो उसको बढ़िया बाइसेप बना के देगा. तो गलती कहाँ पे हो रही है, बेस में हो रही है. इसी को खुद ही को पता नहीं है कि सिर्फ बाइसेप बना के कुछ नहीं होगा, पूरी फिजिक मैटर करती है, और सिर्फ बॉडी कंपोजिशन मैटर नहीं करता, लाइक द वे यू लुक एंड एवरीथिंग, ओवरऑल फंक्शनैलिटी मैटर्स टू. तो एक एग्जांपल हो गया. सेकेंडली, ये सब होता क्यों है ना, लेट्स टॉक अबाउट द फाउंडेशन एंड देन विल रैप इट ऑफ व्हाट्स से. सो आई थिंक दिस कुड बी द 6th और 5th पॉइंट, अगर हमने 5th पॉइंट कवर नहीं किया सॉरी, एंड अगर तुमने पकड़ लिया तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी भाई, हमें क्या करना है, तुम इतना ध्यान दे रहे हो. तो इट कुड बी लाइक दे गिव यू एन आइडिया नॉट अ पर्सपेक्टिव. डज दैट साउंड राइट? लाइक अगर मेरे को बॉडी बनानी है, I don't know how to train, they would just give me a template and won't give me a perspective. But then to be more specific, they give you an idea, but then they don't actually give you an idea, they sell you an idea. Oh yeah, it's yeah, like कि big point. बेंचोद में ये एक चीज़ बोलो और एक ही चीज़ काम करेगी, and the thing is कि if B is, I mean if B is my end goal, right, मैं A to B जा सकता हूँ, Point A to point B, D to B जा सकता हूँ, कैसे भी जा सकता हूँ, right? So I mean that's one thing which I'm really, you know, against it, कि वो actually sell करते हैं आइडिया जैसे उनका प्रॉफिट, और the thing is कि वो कुछ वैल्यू दे रहे ही नहीं है in return उनकी ऑडियंस को, और उनकी ऑडियंस सिर्फ चूतिया बनते हैं. Oh, and like see, on a spectrum of getting from A to B, there's hard work and consistency. Yeah. Okay, and you know there has to be some sort of plan that you need to follow, but you don't know it.
and they come up this, they sell you the idea of getting from point to point B in the shortest time frame. Exactly. So आप देख रहे हो, अगर देख रहे हो तो तुम चूतिया हो. So again man, so Let me just complete वरना फिर आता जाएगा. I'll just say अच्छा that. okay, तो तुम cool. चूतिया I'll hold my हो, thoughts, I'll hold my thoughts. that's completely fine. Yeah. तुम चूतिया इसलिए हो because तुम्हें वो चीज़ जल्दी चाहिए और तुम्हें वो उस तरह से, so see there's something you need to hear and there's something you want to hear. ठीक है, और वो तुम्हारे want to hear को लेके तुम्हें वो चीज़ें बेच रहा है और तुम्हारा चूतिया काट रहा है. ये हो रहा है, समझ रहे हो? आप तो बोल सकते हैं. बस ये point था. So yeah, I mean, of course, I would 100% agree with Zed. You know, it makes absolute sense. So, but yeah, I mean, this thought just struck my head. You know, वो दो लेवल पे लोग को चूतिया बना रहे हैं. इतना इंटेंस लेवल पे है कि पहले तो ठीक है, जो उनका फंडामेंटल काम है कि तुम YouTube पे आए हो, ठीक है, कंटेंट क्वालिटी प्रोवाइड करना है, जेन्युइन प्रोवाइड करना है, वो लेवल पे चूतिया बना रहे हैं. और दूसरे लेवल पे कि वो लोग जो भी एडवाइस दे रहे हैं, जैसे तूने शॉर्ट टाइम फ्रेम की बात की ना, वो लोग प्रैक्टिकल सेंस में भी एडवाइस नहीं दे रहे. मतलब लोगों को ऐसा इमेजिनेशन बेच रहे हैं जो सपने में भी पूरा नहीं हो सकता है. एंड Exactly, yeah, दिस that's so इज जस्ट sad. सो फकिंग हॉरिबल. आई मीन, मैं गला घोट के मारने का मन I कर mean, रहा है. तो so sad और मतलब it hurts man. कैसे बोलूँ मैं? Yeah, again, and trust, I mean, I would just divert for a second, but then Yeah. again, since वो लोग अपने को practical aspect से नहीं बता रहे कि चीज़ें कैसे करेगा, एक सेंस से वो लोग को है ना irrationality I mean उनके thought process में develop कर रहे हैं, but then unconsciously. I mean, like, did you get what I'm trying to say? Like I get it, but then नहीं, but honestly तुझे समझा कि like मैं क्या कहना चाह रहा था. like देख, मैंने उसको बहुत अलग से रिलेट किया. अच्छा. एंड अगेन ये सब पॉइंट्स ना अपने आप में ओवरलैप नहीं कर सकते हो, लेकिन दे वर्क इन कंजंक्शन इज राइट वर्ड. साथ में मिलके, अच्छा, together. साथ में मिलके काम करते हैं. लाइक तुम उसके आइडिया को मानते ही नहीं अगर वो इस तरह दिखता नहीं, ठीक है, और अगर वो उस तरह दिख रहा है, वो आइडिया को पेश कर रहा है, सच्चाई बना रहा है अपने आप उस चीज़ के अंदर, ठीक है. he's being a bit hypothetical in my opinion, and then आपको लग रहा है कि वो सही बोल रहा है और मतलब वो काफ़ी ज़्यादा सबूत दे रहा है उस बात को लेके, but then and also there's this another thing which I'm really against with, so these influencers, right? yeah, they would say that मैं ये चीज़ सेल करो, and they also say कि ये साइंटिफिक चीज़ है. तो देखा Yeah, जाए वो लोग exactly. इनको पूरा Evidence- पैकेजिंग करके लोग को चूतिया बना रहे हैं और कुछ नहीं. shit, yeah, these मतलब वो words- ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे जो लोगों को हिट करेगा, और लोग इतने चूतिया है कि मतलब थोड़ा सोचेंगे भी नहीं है, समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे. एग्जैक्टली. और अभी अगर हम लोग ये चीज़ें बोल रहे हैं तो हमें भी काफ़ी हेट मिल सकता है. अगर दोनों देखें तो एक तो हेट करेगा ही कि तुम भी क्या कर रहे हो ऐसे वैसे. Bring them haters on, baby. या लेट्स गो. तो होता क्या है ना कि दिस थिंग दैट यू, मतलब आप चीज़ों को परख रहे हो बेसिकली. आप लोग चीज़ों को इफ़ इट्स गुड और बैड, मतलब वो बहुत बड़े वर्ड हो जाएंगे, ठीक है. मतलब छोटी छोटी चीज़ों से आपको तोड़ के मालूम पड़ता है कि यार ये पागल बना रहा है, ये सही बोल रहा है, ये चूतिया बना रहा है. और वो समझने के लिए आपको उससे पहले मतलब, तो आई अगेन ब्रिंग दिस पॉइंट. आप हमें लास्ट पॉडकास्ट में मतलब जब हम लोग शूट करने ट्राई कर रहे थे, रवीश कुमार, इफ यू ऑल नो हिम, एवरीबॉडी नोज हिम नाउ डेज. कौन है वो? रवीश कुमार, ही इज फिटनेस के सीन में नहीं भाई, कम ऑन. कौन है? एनडीटीवी प्राइम टाइम जो न्यूज़ होता है ना, मतलब ही इज़ अ वेरी गुड एंकर, ही इज़ अ वेरी गुड अच्छा, anchor, जर्नलिस्ट. ओके, तो वो बोलता है कि अगर जब पॉलिटिक्स के सीन में जब इंडिया की बात करते हो ना, डोंट से यू लव केजरीवाल और डोंट से यू लव XYZ और दद्दू AKA मोदी, यू लव देम. होता क्या ना, व्हेन यू स्टार्ट लविंग देम, आप उनके फ्लॉज को हटा रहे हो साइड में, ठीक है. तो आप स्पेक्टेट कर रहे हो. स्पेक्टेट जब आप करते हो ना, तो चीज़ को आप देख रहे हो कैसे हो रहा है. तो डोंट प्ले अ बायस फॉर एनीबॉडी एल्स एंड देन थिंक व्हाट्स गोइंग ऑन, इन माय ओपिनियन. True, man. I mean, absolutely, it makes sense. So, yeah, I mean, there's this another interesting thought which just struck my head. ठीक है, इतने टाइम से अपन प्रॉब्लम को इशू कर रहे थे, बट देन मैंने सोचा कि ऑडियंस को एक जनरल लेवल पे एडवाइस देते हैं कि हाउ कैन यू एक्चुअली स्पॉट दिस फेक इन्फ्लुएंस. सो देयर इज वन थिंग विच एवरीवन, और ये बहुत जनरल कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होता है कि डोंट, आई मीन, इफ देयर इज दिस पर्टिकुलर यूट्यूबर आई एम वॉचिंग, ठीक है, अपना जो भी फर्स्ट ओपिनियन है या फर्स्ट इम्प्रेशन है, ठीक है, उस पर स्केप्टिकल रहा, उसको मानो मत. ये आई थिंक एक जनरल सेंस पे और प्रॉब्ली ऑन अ वेरी सरफेस लेवल इट कैन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग इट. सो द थिंग इज कि देख, इट्स लाइक कि अगर तुम फर्स्ट स्टेज पे ही उनको मान लेते हो, द थिंग इज कि बाद में जाके इनको परखना बहुत मुश्किल रहेगा. बट देन तुम पहले ही अपने गार्ड्स ऑन रख रहे हो, ठीक है, हेल्दी स्केप्टिसिज्म रख रहे हो. तो आई थिंक दिस कैन रियली वर्क. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? या मतलब इट्स एक्चुअली
एन ऑल इन वन सोल्यूशन मेरे हिसाब में। Yeah, exactly. मतलब इसके आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है। ओपी ओपी पवन ओपी, सही में एक्चुअली ये इधर काम ही खत्म हो गया। इसको तोड़ सकते हो एंड वी कैन डिफाइन इट अ बिट बेट, नो नॉट डिफाइनिंग आल्सो, मतलब बस थोड़ा एग्जांपल देके समझाना, बट देन ठीक है, इट्स ऑल वन सोल्यूशन, like being skeptical and everything, you know, like from the very beginning. Because then what happens is na, look again, there's something you want to see, want to hear, and you need to see, need to hear, like slash लगा के मैं बोल रहा हूँ, and then they are playing with your want to see. And there are some people out there that are really trying to play with your need, मतलब not trying to play, but then trying to give you what you need to see. तो इनसे खेलने का सिर्फ एक ही तरीका है, what Pawan said, in all one solution, ठीक है, try to be skeptical from a very beginning stage, and then analyze, okay, like a stalker or something, ठीक है ना। जैसे किसी लौंडी से आप बात कर रहे हो और वो मतलब आप लोग तक कार्ड देगी तो आप देख रहे हो कि भाई कितनी बार ऑनलाइन आई। भाई ये चीज़ में तो अपन एक्सपर्ट है। बनना ही पड़ता है एक्चुअली यार। सभी है एक्चुअली मेरे हिसाब में, लेकिन हाँ। होते सब है, बताता कोई नहीं। guys I'm honest. सही है Yeah. एक्चुअली। मतलब कितना ऑनेस्ट बनेगा भाई तू, तेरे तो मतलब स्पाइडरमैन है तू। तूने तो स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। ओह। तो रैप करें। So yeah, I mean there's this another point I would like to add. Okay. ठीक है, I mean जो मैंने बोला था उस पे, so you know as Zed said कि you know उनको परखो, the thing is कि परखो but then not like too soon. उनको you know देखो, उनका content देखो over a period of 6 months, over a period of year, फिर जाके उनको जज करो, क्योंकि आई डोंट वांट दिस टू हैपन कि कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं जो स्टार्टिंग में गलत कर रहे हैं बट देन वो उनके मिस्टेक से लर्न कर रहे हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि इनको भी चांस नहीं मिले, इनको मिले, बट देन अगर कोई ऐसा बन जाए तो 3 या 4 साल से वही चूतियापा कर रहा है, ठीक है, वो इस सेलिंग मोड में है, तो भाई मतलब उसको अनफॉलो करो यार। एग्जैक्टली, एंड आई विल ब्रिंग अप मतलब रोहित खत्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। रोहित खत्री, अरे मतलब नॉट इवन किडिंग यार, 2017 Bro, I've heard he's your favorite YouTuber. I love him. Deep down, I hate him on camera and everything, but then I love him. Deep down, I love him so much. भाई तो रात को उसके फोटोज देख के सोता है ना। Yes, bro. He's your fucking motivation, right? Yes. ओ बेंचोद, बेंचोद, मजा आ गया। तो होता क्या है ना कि बैक इन 2017 when I was starting out, तो मेरा शौक था कि मैं लोगों को देखूं काफ़ी, यू नो, लाइक वो फक बॉय बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी घुसने का मेरा मन था। नाउ तो आई एम लाइक फुल फ्लेज इनटू पावर लिफ्टिंग एंड एवरीथिंग। तो आई सॉ रोहित खत्री चैनल वन डे एंड मेरे को भी पता है कि उसका वीडियो कौन सा, लाइक यू नो, उस टाइम के एल्गोरिथम से आपसे कौन सा घूमता था। डोंट जज मी, मैंने देखे इसलिए बिकॉज मेरे यूट्यूब में आए हैं वो, ठीक है, वाया एल्गोरिथम्स। तो हाउ पीपल दे ट्रेन इन द US in their gyms or like outside the country and how they train in India. It was, I would say कि उसने बनाया उसको ऐसा कि लोग मतलब सबसे ज़्यादा व्यूज उसी में मिले, एंड देन उसका प्रोडक्शन मंथ के बेसिस पे हो रहा था, ठीक है, हर महीने 100 के आसपास सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे, विच इज़ लाइक क्रेजी। एंड देन आज तो देखो कहाँ पहुँच गए हैं वो। तो ये है कि मतलब उसको ऊंचाई मिले यहाँ की और उसकी क्वालिटी है यहाँ की और वो बातें कर रहे हैं यहाँ की, एकदम नीचे एकदम Bro, यहाँ। I mean, since I mean, we spoke about Rohit Khatri, ठीक है, so I met this guy. Yeah. इधर पे बात करते हैं। लॉरी जाए तो लॉरी भाई, अच्छा, sorry, लॉरी। So you know, सॉरी। sorry, I mean, हम लोग बहुत शरीफ है। हाँ, मैं तो बहुत ज़्यादा शरीफ हूँ, मैं तो लल्ला और लॉलीपॉप खाता हूँ मैं तो। So yeah, I mean, again coming back to Rohit Khatri, ठीक है, so there was this meetup where I met Rohit, Abhinav Mahajan and Sarath Kalwar, ठीक है। So वो meetup में फिटनेस से लेकर सेल्फ हेल्प तक सिर्फ अभिनव और शरद बात कर रहे थे। शरद तो फिटनेस यूट्यूबर भी नहीं है, वो फिटनेस के बारे में बात कर रहे थे। रोहित खत्री कुछ नहीं, सिर्फ साइड में बैठा था। तो ये उसकी रियलिटी, तो देख कि वो एक्चुअल में क्या दिखाते लोग को, रियल में कुछ बोल भी नहीं रहे। एग्जैक्टली, मतलब उसको अभी मेरे को ये चीज़ में मतलब हंसी भी आ रही है। अभिनव उसको छोटा भाई कहते थे, एंड देन वो लोग का बीच में बीफ हुआ था 2017-18 में जब वो उन लोगों की मार रहा था। तो ये तो अजीब हो रहा है। शरद काला, आई थिंक वो ही वॉज टॉकिंग अबाउट हाउ दिस हैज़ अ कैरी ओवर टुवर्ड्स लॉन्जेविटी, एंड अभिनव तो इज लाइक अ फुल फ्लेज कोच एंड एवरीथिंग, तो लाइक वो तो बात करेगा ही। तो ये ऐसे होता है यार, मतलब ये इन पर्सन जब उनसे मिलते हो, बात करते हो, मतलब रोहित खत्री तो मैंने वो मीम्स वगैरह देखे टिकटॉक वाले, ब्रो व्हाट द फक, बोल रहा है कि 3 किलो आलू खाओ, 2 किलो गेहूँ का, पता नहीं क्या चूतिया आप कह रहा है। लोग बोल रहे हैं कि ये मेरे क्लाइंट्स हैं, ये भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, आप भी खाओ।
मतलब what the fuck यार। और रियलिटी है कि वो स्टेरॉइड्स लेता है। हाँ अरे, मतलब actually उसकी गार्ड होके देखोगे ना एक बार कसम से तुम लोगों को चांद नजर आएगा। अरे, इतने डॉट्स है उसके ऊपर। ढूंढ मैंने वीडियोस देखे ऑनलाइन, लोगों ने ना उसको मतलब उसके जिम में कुछ लोग थे, ठीक है, वो अंदर स्टेरॉइड्स लेने जाते हैं, लिटरली शूट किया पूरा। ओह शिट। ऑब्वियसली अंदर जाके नहीं, उससे गांड तो नहीं शूट कर सकते। हाँ मतलब कितनी बार छेद बनवाया है। बट देन हाँ मतलब लिटरली शूट किया, यू नो, अभी अंदर जा रहा है, अभी इंजेक्शन मार के आ रहा है बॉडी में, ऑल दैट शिट। ओह शिट, दैट्स मतलब या हाँ मतलब भाई इससे एक फनी चीज है भाई, पता नहीं। बोलना भाई। तो मैं जहाँ पे फिलहाल अभी ट्रेन कर रहा हूँ ना, मैं नाम वाम लोगों जाइएगा, ठीक है। तो वो एक गांव साइड इलाके में पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब इफ़ यू ऑल नो एंड इफ़ यू ऑल डोंट नो, मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो, स्टेरॉइड्स अगर आप ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इट्स इलीगल टू प्रिस्क्राइब इट, टू सेल इट, ओके। और लोगों के सामने लेना भी, एक जिम जैसे कोई प्रेमाइसिस के अंदर लेना। तो मैं देख रहा हूँ कि भाई उधर जिम का ओनर ही लॉकर रूम के अंदर बैठ के ऐसे मेरे को वो शीशी लेके लाइक, और शायद कैसे हो लाइक फक, ये क्या हो रहा है। God. मतलब वो बंदा अंदर गया है, मतलब ये उस टाइम मतलब रोमांच था भाई। मतलब उन्होंने अपनी गांड को जिंदगी में 100 बार के ऊपर देख लिया होगा दूसरे की, कि तू मेरे मार मैं तेरे मारता हूँ। और वो मेरे को दिखा के ही इज लाइक वहाँ पे शीशी को हिला के, आई बिलीव टेस्टोस्टेरोन था, एनाथेट था, हिला के इज लाइक, और बेटा कैसे हो। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, तुम क्या कर रहे हो अंदर ऐसे। इस मतलब ये यू नो इतने अच्छे प्रवचन के लिए जो जैद ने डिस्क्राइब किया उसकी गांड, इसके लिए तो चैट में बनता है गांड होगी। हाँ यार प्लीज बनता है यार। And also I'm just thinking कि how many minutes are like up? Can you just check it from there? ओके श्योर, आई थिंक 36। 36. काफी हो गया यार, बहुत Yeah, पक गया। so, I mean, बस हो गया। let's wrap this shit up because we don't have anything else to sell. जो भी हमें बोलना था, I think, वो हमने बोल दिया है। हम कुछ बेचने तो नहीं आए। अरे exactly, I mean अच्छा। मैंने वो sarcastic tone में बोला। अच्छा ओके सॉरी। Anything to तो sell रोल as in मजाक। मतलब अपन उतना ही बोल रहे जितना अपने को सही लगता है कि कुछ बोलना चाहिए। सही है, बट देन वी डू सेल। You're right. आई थिंक ये खुद ही कर लेता हूँ, ठीक है। अगर सो बेसिकली अब पवन तो है बहुत चीज़ें खुद से कर ही रहा है। मतलब मैं दिस कुड बी एन अप्रिसिएशन वाला सेगमेंट जहाँ पे, तो पवन और मैं काफ़ी लंबे टाइम से दोस्त हैं। और मैं देख रहा हूँ पवन को हर साल, मतलब पवन तो प्रोग्रेस कर ही रहा है लाइफ के अंदर, ठीक है। बट देन इन कुछ दिनों में पवन ने कुछ चीज़ें ऐसी रियलाइज़ की है जो वो पहले नहीं करा था और अभी कर रहा है। और उसका जो प्रोग्रेशन लेवल था ना, आई थिंक बाय 50% से ऊपर, 70 बोलना भी ठीक ही होगा मेरे हिसाब में, उस रेट पे उसने प्रोग्रेस कर लिया है। आप जितने लोग उसको फॉलो करते हो आप देख रहे होगे उसके फीड्स में कितना, मतलब वो सब पहले भी था, बट देन इन कुछ दिनों में जो निकल के आ रहा है ना, आई एम लाइक वेरी वेरी इम्प्रेस्ड ब्रो। मतलब मैं कैमरा बेस बोल रहा हूँ मैन, ठीक है। वो पिलता हूँ तेरे को कैमरा बंद होने के बाद में माथे हाँ लेते भाई आराम से। अभी इंडिया में अभी भी एक्सेप्ट करना शुरू हुआ है, मम्मी देख पीट देगी। Right. एनीवेज या पवन तो बहुत सही चल रहा है लाइफ में, एंड ही इज डूइंग लाइक वेरी गुड थिंग्स राइट नाउ। और मतलब जो भी हो, ये चीज़ भी करना हम लोग के दिमाग में बहुत टाइम से था, लेकिन पवन ने ही आज मेरे को कॉल किया, टेक्स्ट भी किया कि भाई आज फाड़ देंगे, वेंचोत करना है। लाइक ठीक है करते हैं भाई, पवन इतना अच्छा फील कर रहा है तो मैं भी आऊँगा। सो यार थैंक्स फॉर हैविंग पवन, एंड थैंक्स फॉर डूइंग इट, यू नो, Yeah, of course, बिकॉज of देन course. दोनों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और लोग ही गांड मार सकते हैं जो गलत काम कर रहे हैं बाहर। Exactly. So yeah, I mean, guys, there's this thing again. I would say, we don't have any hate with any influencers. Yeah. We just don't like What they they're sell. selling and their ideas. That's it. We don't Yeah. care कि वो as a person कैसे, because that's not a problem, right? So yeah, I mean, again, to wrap this up, this was a really great session. But then again, I mean, I would just like to say a few things about Zed. So again, I mean, so again, like मैं जब भी तारीफ करता हूँ तो honestly करता हूँ. This guy really is one of the, or in fact the only person I know जो actually कुछ सोचता है वो उसको implement करता है. I mean, Oh. I've never seen someone who has like a work ethic like him, who is as balanced as him, and also who is at the same time good from the heart. And I genuinely mean this. मतलब अब ये तो हम में इतनी दोस्ती बढ़िया है, तो अगर उस हिसाब से भी आ रहे तो मेरे लिए तो मतलब I have earned somebody in my life. And also मतलब ये सिर्फ अपन शूट नहीं कर रहे इसलिए नहीं बोल रहा है, मैं तुझे बहुत टाइम पहले भी बोला, राइट? हाँ मतलब बोल चुका है, और ऑब्वियसली मतलब ये तो दिस इज द साइन ऑफ लव नहीं बोलूँगा, ये अजीब लगता है बोलने में,
तो दोस्ती में तो मतलब ये होता है, प्यार हुआ इकरार हुआ जीना आहिस्ता, वो गाना है ना वो, ओ भाई 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 मेरे घर वाले देखेंगे तो गलत समझेंगे। समझे यार, अब क्या कर सकते हैं दोस्ती में, मतलब ये इट्स सच अ टैबू दीस डेज के, मतलब भाई हम दोस्त करने में प्यार है, मतलब कैसा प्यार है भाई, वो ऐसे वाला है या ऐसे वाला है, व्हाटएवर। तो ठीक है यार, मतलब हमारी काफ़ी अच्छी बनती भी है, और मैं समझता हूँ जिन सबकी बनती है उस सब में रहना चाहिए, क्योंकि फिर पवन मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहा है जो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, वो मेरी तारीफ़ करेगा नहीं करेगा वो मतलब उसकी मर्जी है, और वो कर रहा है तो मतलब वो देख रहा है मेरे काम को, जो कि मुझे दिल से अच्छा लग रहा है, ठीक है। ओवरऑल तो मतलब मैं ये कहूँगा कि बस किसी एक काम को अप्रिशिएट करना ज़्यादा बेटर होता है, rather than किस तरह का इंसान है वो। एनीवेज यार, मेरी तरफ से तो काफ़ी हो गया, मैं थक गया हूँ, मेरे को चाय पीनी है, पवन तो ख़त्म कर रहा है। सो या आई मीन अगर किसने पूरी वीडियो देखी अभी तक, आई मीन भाई या बहन, तू जो भी है, तू ओपी इंसान है, समझा? तू चाय पिलाऊंगा भाई बहन जो भी हो, मिलना जरूर, चाय पिलाऊंगा। So yeah, I mean, to wrap this up, this has just been our first episode, and this is just like an experiment which we conducted, and I think it, ran pretty successfully. So yeah, we are gonna for sure do this a lot more in the near future. So yeah, I mean, all I would say is just hang in there, guys. We are gonna get या there soon. इट्स लाइक माल भर चुका है, बस छूटने की देरी है, मतलब पोर्ट से गलत मत समझना। ठीक है, मतलब या देयर सो मच मोर कमिंग इन, मेरे साइड से भी बहुत कुछ आएगा, और मतलब काफ़ी बात करेंगे। आज तो इन्फ्लुएंसर्स की बात कर ली, नेक्स्ट टाइम मे बी इमेज शेमिंग की बात कर लेंगे, बिकॉज इमेज शेमिंग ऐसी चीज़ है जो लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर्स क्रिएट करता है, इट्स क्रिएटिंग ओबेसिटी वाला एपिडेमिक, इट्स गेटिंग पीपल एंशियस इन द वेरी फर्स्ट प्लेस, व्हाट गोज इनटू इट, हाउ डज दैट हैपन, यू नो। आई हैव फ्रेंड्स दैट हैव मेजर ब्रेक डाउन टॉकिंग टू मी, मेरे सामने से बात करते रो देते हैं, मतलब मैं तो कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन मैं सबको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं काफ़ी लोगों का हबराज भी हूँ, ठीक है। हमारे जैसे मैं काफ़ी लोगों का सीक्रेट भी मतलब मेरे पास होता है, दोस्त हो तो आप किसी के होता ही है, तो लोग टूट जाते हैं यार, क्योंकि इमेज शेमिंग इतनी बुरी चीज़ है। नेक्स्ट टाइम उसके बारे में बात करेंगे पवन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तू भी अपने बचपन में गया है, मैं भी बचपन में गया हूँ, और For sure. अपनी तस्वीरें भी लगाएंगे तो थोड़ा अपील लगेगा। ओके, काफ़ी है, तीसरी बार रैप करने बोल रहा हूँ, साला अब तक नहीं कर रहा है। चाय पीनी है मेरे को, मैं चाय पीनी है मेरे को। By the way, it's not me, it's who, you're not wrapping it up from your side. ओके, मतलब ठीक अच्छा, है, अभी so I was bye supposed to बोल rap, okay, नहीं, bye. I mean, you're not wrapping it from your side, then I'll wrap it from my side, right? Okay, ठीक है, Yeah. but then मालूम पड़ा तो करी, चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ। So that's all from my side, guys. Like finally, okay, I'll see you on the next one. Again, Pawan, thanks for like having me over, and ये बस इतना ही था कि भाई बस थैंक्स तो मतलब दो बार ही बोलना काफ़ी है, मैं तेरे को 3 बार के पैसे भी नहीं दिए था। अब यार तू वैसे भी हरामी 100 रुपये कम दे मेरे को, याद रखना भाई। अच्छा वो मैं निकलवाऊंगा तेरे से। भाई, वो नहीं मिलने वाले 100 रुपये, मेरी खुद की तंगी चालू है। ऐसी बात है इतना, ये मुझे पैसे दे के लाया था, जो भी देख रहा है मत देखना, इसने मुझे 500 रुपये दिए थे, 500 का बोल के मुझे 100 रुपये भी कम दिए हैं, और चाय भी मैं अपने पैसे से लेके आया हूँ, ठीक है, मेरा पेट्रोल भी गया है, जो देखना मुझे इसका वीडियो। सो या एनीवेज, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, और आई मीन अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, एंड या दैट्स अबाउट इट फ्रॉम माय एंड। टाटा, बाय बाय।